Angry bird out there, and that is KL Rahul with offered length delivery and dispatched in a splendid manner by Rahul, who moves on to 92, and all eyes will be on a century by Rahul because he has played really well. He has really gathered and constructed and weaved his innings very well throughout this entire time, along with first with Virat Kohli and then now with Rishabh Pant. 42nd over in progress, India 231 for 3. Tom Curran will have to be more careful with his length. In fact, there is a point, there is a cover and there's a mid-off along with a deep extra cover and a deep backward point for KL Rahul. Here comes Curran, short off length, and it's been pulled nicely through square leg for runs. What a shot, delicate, just playing and placing that ball in that vacant square leg area. Fielder at fine leg could not cut it off. It was brother Sam Curran who could not help brother Tom Curran who was bowling. But currently, KL Rahul is really playing well. India on 235. As he saw the ball dug in short, Ashish, he just took advantage of it and just placed, give direction to the delivery. For 4 runs, he goes up to 96. एक दिवसीय मैचों में विकेट कीपिंग की भूमिका निभाने वाले दोनों ही बल्लेबाज इस समय बीच मैदान पर हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक अच्छा स्ट्रोक ऋषभ पंत लगाते हैं तो राहुल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं रहते। वो भी अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन करते हुए फिलहाल 96 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं। 4 रन मात्र दूर हैं अपने शतक से, और अगर ये 4 रन बना लेते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका पहला शतक होगा, और इससे पूर्व 4 शतक वो एक दिवसीय मैचों में लगा चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन लोकेश राहुल के द्वारा। इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को पुल कर दिया, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सैम करन मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन 1 रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिए जाएंगे। इस 1 रन के साथ स्कोर भारत का 236, 3 विकेट के नुकसान पर, और राहुल पहुंचे इस 1 रन की सहायता से अब 97 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ऋषभ पंत तैयार हैं और इधर पंकज। We'll have to see what Rishabh Pant does, because he just knows one way of batting, and that's aggression, aggression and aggression. And very timely intervention there by Rishabh Pant, because during the 36th, 37th over, India needed that sudden burst of runs, and he has provided that. 236 for 3. Rishabh Pant gets a shot off length delivery, slow delivery by Tom Curran, very nicely bowled, and Rishabh Pant wanted to go for that pull stroke. It looped up in the air, has gone back to Jos Buttler, who has taken the catch. Umpire has said it's out, but Rishabh Pant has called for a review, which is very interesting. He claims it hit the elbow and not the bat. Virendra Sharma, it's the second time that his decision has been challenged. We'll have to see what the umpires have to say. And in the replay, it looks like the ball went off the glove to the visor of the helmet and then looped up, but a very good delivery. Rishabh Pant was completely foxed. He didn't realize that it was a slower delivery, and the Ultra Edge now confirming whether the bat came in contact with the ball or not. That's what the third umpire is trying to look for. A cat has 9 lives. How many does Rishabh Pant have? बल्ला थोड़ा पहले चल गया था, धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद में खासा उछाल भी था। गेंद को पुल करना चाहते थे, और मैं कहूंगा कि इस शॉट को खेलने में संभवतः पूरी तरह से संतुलित भी नहीं थे ऋषभ पंत। लेकिन जैसे ही वहां पर कॉट बिहाइंड की अपील हुई, अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने आउट दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला इंग्लैंड के पक्ष में जाएगा। और वीरेंद्र शर्मा, जैसा कि पंकज बता रहे थे, कि संभवतः एक बार फिर से उन्हें ऋषभ पंत के ही संदर्भ में अपना फैसला परिवर्तित करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो शारीरिक हाव भाव होते हैं वो आपको एक बहुत बड़ा संकेत दे देते हैं क्रिकेट में कि क्या डीआरएस जो लिया गया है बल्लेबाज के द्वारा वो किसके पक्ष में जाने वाला है। जैसे ही उन्हें आउट दिया गया, उन्होंने फौरन कहा कि मैं डीआरएस लूंगा, क्योंकि जानते थे कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ है, बल्कि उनकी कोहनी के नजदीक जाकर, उनकी बाईं कोहनी के नजदीक जाकर गेंद हवा में उछली थी और उसको लपका था वहां पर जॉस बटलर ने। अगली गेंद इस बार फिर से पटकी हुई ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और छोटे कद के ऋषभ पंत ने तमाम प्रयास किया कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हो, और एक अपरकट की तरह उसे बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर से निकाल करके 4 रन हासिल किए जाएं। लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन अतिरिक्त रन के रूप में, वाइट बॉल के रूप में 1 रन जरूर मिल गया भारत को, और भारत इस 1 रन के साथ 236, 3 विकेट के नुकसान पर। Ashish, Rishabh Pant is such a character. He's like a young boy who really wants to grab that lollipop when it is given his way. That's the kind of shot he plays. 237 for 3. Tom Curran bowls on the legs, and it's been flicked into the mid-wicket zone. Has it gone all the way? We'll have to check with the umpire.
Umpire Sharma is under a lot of pressure whenever Rishabh Pant is batting. But looks like it has crossed. It was Reece Topley who was there at the deep mid-wicket zone who tried to cut that ball off. But looks like the ball has gone all the way over the... Oh yes! What a shot! Strong forearms of Rishabh Pant, flicking that delivery and sending it over mid-wicket for another 6. India jump up to 243 for 3 and Rishabh Pant has gone up to 46 in just 27 deliveries. Absolutely explosive, Ashish. खराब गेंदबाजी मैं कहूंगा टॉम करन के निश्चित रूप से कि स्लॉट में गेंदें कर रहे हैं और इस तरह के पिच पे जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप फुलर लेंथ की गेंद करते हैं या ओवर पिच गेंद करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बल्लेबाज आप पर जमकर प्रहार करेगा। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप पर थी और गेंद को फ्लिक कर दिया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। आदिल रशीद हालांकि वहां पर तैनात थे लेकिन गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ ऋषभ पंत का। मात्र 28 गेंदों में अर्धशतक चौके की सहायता से ऋषभ पंत ने लगाया और इसके साथ ही भारत का स्कोर बढ़कर के 247 3 विकेट के नुकसान पर 42 ओवर की समाप्ति के बाद एक दिवसीय मैचों की यदि बात करें तो ये दूसरा अवसर एक दिवसीय मैचों में जबकि अर्धशतक लगाया गया हो ऋषभ पंत के द्वारा और इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका पहला अर्धशतक। So last time it was Krunal Pandya who did it in 26 deliveries and now it's Rishabh Pant who has done it in 28 deliveries. Once again, the last 10 overs turning out to be very, very difficult for England. But Rishabh Pant, full marks to him, absolutely teeing off to the crescendo and he's hitting, and the best part, Ashish, he's hitting the balls in a very clean manner. जी हाँ, बिल्कुल एक दो अवसरों पर चूके जरूर अपने प्रयास में लेकिन जब भी गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ तो कहीं ना कहीं गेंद बल्ले के बीचों बीच आई और गेंद अच्छी खासी रफ्तार से अच्छी खासी टाइमिंग करते हुए उन्होंने अपने स्ट्रोक खेले। अच्छी खासी रफ्तार से वो गेंद सीमा रेखा से बाहर या सीधा सीमा रेखा की तरफ गई। तो कहना होगा कि कहीं ना कहीं इस समय तमाम मुश्किलें इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए नजर आती हुई और जिस तरह का प्रदर्शन ऋषभ पंत और लोकेश राहुल लगातार कर रहे हैं, अब तक 89 रनों की साझेदारी चौथी विकेट के लिए हो चुकी है। नए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार वहां पर बेन स्टोक्स और पहली गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया। बैक टू द बॉलर लोकेश राहुल ने 97 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर नर्वस 90s में हैं इस समय लोकेश राहुल। आशीष, couple of overs back we were talking about a century from Rahul, but then Rishabh Pant actually overtook him and got his half century first. जी हाँ, बहुत देर तक लोकेश राहुल 97 पर रुकना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऋषभ पंत की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि वो कब उन्हें ओवरटेक करके पहले शतक लगा लें, अगर लगा पाए तो कहना मुश्किल है। फिलहाल बेन स्टोक्स की अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर की तरफ भटके हुए वाइड का इशारा देखना आता है या अंपायर की तरफ से नहीं, नितिन मेनन का कहना अंपायर का कि गेंद उनके पैड पर टकरा के गई थी, इसकी वजह से वाइड का इशारा नहीं। हालांकि लोकेश राहुल इस बार उनके फैसले से कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि गेंद और पैड के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ था, ये वाइड करार दी जानी चाहिए थे। फिलहाल अगली गेंद लेकर बेन स्टोक्स एक बार फिर से तैयार होते हुए देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं बेन स्टोक्स। दूसरे स्पेल में खासे महंगे साबित हो रहे हैं बेन स्टोक्स की अगली गेंद। इस बार ऑफर मिडल स्टंप की इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। ऐसे 1 रन के साथ भारत का स्कोर 248 3 विकेट के नुकसान पर 43वां ओवर इस समय प्रगति पर। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन लोकेश राहुल के द्वारा। लगातार नाकामयाबियां देखते हुए इस श्रृंखला में खासतौर पे T20 मुकाबलों में जहां पे मात्र 5 रन उन्होंने बनाए, 2 बार 0 पर आउट हुए, 5वें T20 मुकाबले में उन्हें टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की है वो काबिले तारीफ। पिछले मैच में 62 रन बनाकर नाबाद रहे थे और आज उन्होंने अब तक बेहतरीन 98 रनों की पारी अब तक खेली है 106 गेंदों का सामना करने के बाद। ऋषभ पंत तैयार हैं फिलहाल अगली गेंद पर स्ट्राइक लेने के लिए। उनके लिए ऑफ साइड पर 30 गज के दायरे के अंदर 4 फील्डर तैनात हैं। बेन स्टोक्स की अगली गेंद लेकिन कौन बनाते हुए ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, और इस बार नितिन मेनन को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी इस गेंद को वाइड करार देने में। जोश बटलर भी जो टीम के कप्तान है वो भी नाखुश नजर आए इस अवसर पर। बेन स्टोक्स की इस गेंदबाजी से दिशा में पूरी तरह से भटके हुए थे। उनका प्रयास ये था कि गेंद को थोड़ा सा वाइड रखें और आमंत्रित करें ऋषभ पंत को कि वो स्ट्रोक के लिए जाएं, और ऐसे में गेंद को यदि थोड़ा अपिश खेल बैठते हैं तो डीप पॉइंट पर या कवर क्षेत्र में उन्हें कैच किया जा सकता है सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन अपनी मंशा में पूरे खरे नहीं उतरते हुए। और अगली गेंद लेकर बेन स्टोक्स फिर से तैयार, इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर उठा करके खेल दिया और गेंद लॉन्ग ऑफ से बाहर 6 रनों के लिए।
पिछली गेंद पर जिस मंशा के साथ गेंदबाजी करना चाहते थे वैसा हो नहीं पाया। इस बार उसी मंशा के साथ ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद की बेन स्टोक्स ने, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क हुआ ऋषभ पंत का और गेंद सीधा हवा में एक गोली की रफ्तार से निकलती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। धीमी गति की गेंद थी लेकिन उसका भरपूर उपयोग किया ऋषभ पंत ने और उसके बाद जो चेहरे के हाव भाव थे, संभवतः बेन स्टोक्स अपने से कह रहे हो कि इस ऋषभ पंत का कुछ नहीं हो सकता। स्पेयर अ थॉट फॉर द बॉल, ऋषभ पंत इज हिटिंग इट सो हार्ड। कितना निर्मम तरीके से प्रहार कर रहे हैं इसका अंदाजा पिछले ओवर की अंतिम गेंद, पिछले ओवर की इस ओवर की पिछली गेंद पर हुआ था। बेन स्टोक्स इस बार राउंड द विकेट और इस बार ऑफ स्टंप पर आती इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है जॉनी बेयरस्टो। गेंद को उन्होंने फील्ड किया और 1 रन के लिए छोर बदलते हुए बल्लेबाज फिर से पंत पहुंचे 57 के व्यक्तिगत स्कोर पर और भारत का स्कोर इस 1 रन की सहायता से 256 3 विकेट के नुकसान पर। रनों की साझेदारी की यदि बात करें तो 98 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 98 पर ही इस समय राहुल भी हैं। अगर वो 2 रन पूरे कर लेते हैं तो इस साझेदारी के भी शतक पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ उनका भी शतक पूरा हो जाएगा। तैयार बेन स्टोक्स, सामने है राहुल, मात्र 2 रन दूर अपने शतक से। अगली गेंद ऑफर मिडिल स्टंप पर आती इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 99 पर लोकेश राहुल 107 गेंदों का सामना करने के बाद ओवर की समाप्ति हुई 257 3 विकेट के नुकसान पर 43 ओवर की समाप्ति के बाद। Hammer and tongs is what Rishabh Pant is going for. Absolutely fantastic display of power cricket. And the best part is the way the confidence has been built up by both these batsmen is exemplary, because all the hard work was done by the English bowlers for the first 40 overs, and that seems to sort of going down the drain right now, because Ben Stokes was quite all over the park, all over the place, and that's the reason why Rishabh Pant was able to take advantage of it. And Rahul is batting on 99, a very well-made century he deserves. We'll have to see whether he's able to get it or not, and that will also bring up the 100 partnership. That's what you said, Ashish. But India would be very happy. The prospect of reaching 300 plus is now very clear. It looked like England would be able to stop India just about 300 or under 300. But the way these two are playing, and with 7 more overs to go, India definitely looks to be on the track as far as going past 300 is concerned. And that is going to be a very big score. But also good to see that this track has held really very well. The bounce is there, the hardness of the surface is there, the ball hasn't really done any mischief whatsoever. The spinners have had their time and the fast bowlers also have had their time, and if the batsman was ready to apply himself, there are also a lot of runs there. So all in all, England looking at a harsh reality that after doing all the good work for the first 40 overs, the Indian batsmen are exploiting the last 10 overs. Rahul batting on 99, Sam Curran bowls, and on the middle stump he works it into the mid-wicket zone for a single, for a very, very well-deserved century. What a fantastic innings here by young Lokesh Rahul. Takes off his helmet and his bat, kisses the helmet, and also in fact acknowledges the applause by the friends in the dressing room. Though we don't have any crowds out here, it would have been a great opportunity, isn't it, Ashish? शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन राहुल के द्वारा, और 100 रन ठीक उन्होंने पूरे किए, अपना शतक पूरा किया 108 गेंदों का सामना करने के बाद। भले ही दर्शक बीच मैदान पर नहीं है, उन्हें अनुमति नहीं है, लेकिन जो सामने स्टेडियम के हिल टॉप है वहां पे भारतीय समर्थक दर्शक झंडे को लेकर के, भारतीय परचम को लहराते हुए बीच मैदान पर अपने बल्लेबाजी के परचम को लहराया राहुल ने, और उधर दूर स्टेडियम से बाहर हिल टॉप पर भारतीय समर्थक दर्शक भारत का ध्वज लहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अद्भुत नजारा है पंकज, देखते ही बनता है। 258 3 विकेट के नुकसान पर 5.98 रनों की रफ्तार इस समय भारतीय पारी की, और सैम करन की एक गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। ऋषभ पंत के लिए एक प्लॉय है, एक रणनीति है कि ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद की जाए और उस पर उन्हें आमंत्रित किया जाए स्ट्रोक को, ताकि वो हवा में खेल बैठे और एक कैच का अवसर बन सके। लेकिन अपनी रणनीति में, अपनी दिशा में फिलहाल कामयाब होते हुए नजर नहीं आए सैम करन। गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। हमारे स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि ये शतक जो था उनके करियर का 5वां शतक था,
और इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने वाले वो 23वें भारतीय खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा एक दिवसीय मैचों में शतक अगर किसी के नाम है तो वो युवराज सिंह है। और उसके बाद कप्तान विराट कोहली जिन्होंने 3 शतक लगाए, युवराज ने 4 शतक लगाए। In the meanwhile, next delivery by Sam Curran, driven in a very agricultural manner by Rishabh Pant towards long on. He wanted to hammer it towards the covers, but got the bottom of the bat and just a single for Rishabh Pant. What an innings by KL Rahul, and also great support by Rishabh Pant on that occasion. And India would be very happy for Rahul because the way he constructed the innings was amazing. This time Rahul goes for that big heave for a ball outside the off stump, finds a fielder at long on, just a single, and that will take him to 1-0-1. India 261 for the loss of 3 wickets. 44th over is in progress. Rishabh Pant is batting on 58. But Sam Curran, amongst the other English bowlers, looks a bit more intelligent as far as a change of pace or variation in length is concerned, because Ben Stokes and Tom Curran were not able to stop Rishabh Pant. Let's see what Rishabh Pant can do. Hardik Pandya is just waiting outside the boundary. He's so impatient to get in out there. But then, in fact, the ploy, as you mentioned, Ashish, bowl Yorker length delivery outside the off stump for Rishabh Pant, who tries to sort of sweep that ball, reach out to that delivery and smack it, gets the bottom of the bat and just a single. And England would like to keep Rishabh Pant away from strike as much as possible if they can't at least get his wicket. But 3 boundaries and 5 hits across for Rishabh Pant has resulted in him scoring 59 runs off just 32 deliveries. What an innings it has been, as KL Rahul now will be on strike. Sam Curran has bowled really very well, is into his 6th over, so he will be expected to put some brakes on this scoring. Rahul gets a full toss, and he hits it past the bowler. Fielder at long on is not able to cut that off. Powerfully hit, and 4 runs there for KL Rahul. It was hit so hard that Sam Curran was in the line of firing. He had to jump out. Normally you see a bowler trying to go for the cotton ball, but the ball was hit so hard that Sam Curran didn't even afford to think for a moment. He just had to get away and jump across, and so was the umpire Virendra Sharma. He had to come out of the line of the fire. But what a shot, powerfully hit by KL Rahul. Even after playing there for at least 2.5 hours, he's still playing really very well. 266 for 3. 44th over in progress. 6 runs is what India is scoring at. Now, shot, pulled. It was a quicker delivery. Rahul couldn't really get too much on it, and the ball hitting the top part of the bat, trickling towards long leg for a single. End of 44 overs. Eventful over. 10 runs coming off in. India 267 runs for the loss of 3 wickets. On course to reaching 300, Ashish. But England would be disappointed with their performance in the last 5 overs. बिल्कुल, पिछले 5 ओवर की यदि बात करें तो 68 रन जुड़े हैं भारतीय पारी में और 12.80 रन प्रति रन की रफ्तार से। और डेथ ओवर्स की यदि बात करें तो पिछले 4 ओवर में 57 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस जाहिराना अंदाज में इस समय बल्लेबाजी हो रही है। और उधर हार्दिक पांड्या, जो कि लगातार अभी भी हेलमेट अपने सर पर लगाए हुए सीमा रेखा से मात्र 2-3 गज की दूरी के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी आतुर हैं बीच मैदान में आके अपने हाथ दिखाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले मैच में सिर्फ 1 रन पर आउट होने की टीस उनके मन में होगी और जानते हैं कि मात्र 3 मैचों की ही श्रृंखला है। दूसरा मैच समाप्ति हो जाएगा आज इस मैच के बाद, तो तीसरे मैच में फिर क्या कुछ करने को मिलेगा कहा नहीं जा सकता। और साथ ही साथ ये एक इस तरफ भी इशारा बात करती है पंकज कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसका भी दबाव वर्तमान खिलाड़ियों पर है। जानते हैं कि अगर एक श्रृंखला में वो अच्छा नहीं कर पाए तो उसके बाद तमाम एक लंबी फहरिस्त है बेंच पे, जो कि टीम में शामिल होने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। Yes, that's about the Indian team, but the English bench strength will have to perform. They have 6 more overs to keep the bowling as tight as possible because remember, they have done all the hard work in the first 40 overs and they wouldn't like to just flush it down the drain. But who will be the bowler who will now make it possible for England is the big question. 267 runs for the loss of 3 wickets. 44 overs have been bowled and now the last power play is also in action. India can go all the way up to 315 or 16. Tom Curran starts on the over. First ball to Rahul. He gets the ball almost on the Yorker length, very low part of the bat, and it's played between the gap between mid wicket and long on.
for a single, so that will take India ahead. But Tom Curran and Sam Curran, the pair of brothers, will have to do it for England. But Ashish, these 6 overs are going to be very crucial for England, especially the bowlers. निश्चित रूप से एक कठिन परीक्षा है इस समय इंग्लैंड के गेंदबाजों की, ये देखते हुए कि बीच मैदान पर राहुल मौजूद हैं जो कि अपना शतक पूरा कर चुके हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अच्छी टाइमिंग के साथ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऋषभ पंत एक विस्फोटक पारी जिन्होंने अब तक खेली है, 32 गेंदों में 59 रनों की पारी उनके बल्ले से देखने को मिली है। क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया है। एक लंबे अंतराल के बाद एक दिवसीय मैचों में उन्हें खेलने का अवसर मिला है भारत की तरफ से। नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद को ऋषभ पंत ने खेल दिया था, जो कि ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर की तरफ थी। अपने बल्ले को थोड़ा सा हॉरिजेंटल करते हुए डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक आसान से रन के लिए इस 1 रन की सहायता से भारत का स्कोर बढ़कर के पहुंचा 269 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋषभ पंत और राहुल के बीच में एक बढ़िया शतकीय साझेदारी पनप चुकी है और लगातार जिस तरह से तीसरे और चौथे विकेट के लिए 2 शतकीय साझेदारी आज भारत को मिली, उसकी वजह से भारत इस पारी में काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 269 3 विकेट के नुकसान पर 6 के ऊपर अब औसत रनों की रफ्तार है। टॉम करन की अगली गेंद, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद डालना चाहते थे लेकिन लो फुल टॉस पर गेंद मिली और गेंद को वहां पर खेल दिया था पॉइंट क्षेत्र में, फील्डर के पास। जैसन रॉय वहां पर मौजूद थे, 30 गज के मुहाने पर गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन तब तक 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर हुआ लोकेश राहुल का अब 108 रन और भारत का स्कोर 270 3 विकेट के नुकसान पर। काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहना होगा कि शुरुआत में ही भारत के जो 2 झटके लगे थे, मात्र 37 पर दूसरा विकेट गिरा था, तब बल्लेबाजी के लिए आए थे। उसके बाद से लेकर भारत का स्कोर अब 270 हो गया और अभी भी बल्लेबाजी करते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा कर रहे हैं। उम्र लोकेश राहुल की 28 वर्ष है, लेकिन उम्र का कोई ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा। अगली गेंद और 1 रन का इजाफा वहां पर इस बार ऋषभ पंत भारतीय टीम के खाते में करते हुए 61 पर पहुंचे ऋषभ पंत और भारत का स्कोर 271 3 विकेट के नुकसान पर। 45वां ओवर प्रगति पर है, मात्र 2 गेंदों का आना बाकी है। बेन स्टोक्स अपने पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए। दूसरे स्पेल के दौरान अगर देखें तो कुल मिलाकर उन्होंने 15 और 10 25 रन दिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे स्कोरर रजित सिन्हा बताएंगे कि पिछले 2 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए। इसी बीच अगली गेंद और इस बार गेंद को पुल करने का प्रयास किया, गेंद हवा में है और वहां पर रीस टॉपली मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने गेंद को अपने हाथों में कैद किया और लोकेश राहुल की पारी समाप्त होती हुई एक शानदार पारी का अंत होता हुआ 114 गेंदों में 108 रन बनाकर लोकेश राहुल वापस पवेलियन लौट रहे हैं। 108 रन उन्होंने लगभग 94 की स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अपराइट सीम के साथ इस बार ये गेंद थी, उछाल लेते हुए टप्पा खाने के बाद उनके शरीर की तरफ आ रही थी। लेग स्टंप की तरफ हटते हुए इस गेंद को पुल करना चाहते थे। अच्छे टाइमिंग के साथ स्ट्रोक नहीं खेल पाए, गेंद को नीचे नहीं रख पाए, अपनी रिस्ट को रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से गेंद हवा में रही और एक आसान सा कैच लपका डीप स्क्वायर लेग की दिशा में रीस टॉपली ने। तो इस तरह से भारत को यह चौथा झटका लगता हुआ 271 के स्कोर पर और इस समय 45वें ओवर की अभी 1 गेंद का आना बाकी है। तो टॉम करन को मिलने वाली ये पहली सफलता, 7.5 ओवर में कोई मेडन नहीं, 52 रन और 1 सफलता। इकोनॉमी रेट यदि आप देखें तो 6.64 का अब है टॉम करन का। लेकिन दूसरी तरफ उनके छोटे भाई सैम करन ने अब तक 6 ओवर की गेंदबाजी की है और 1 विकेट उन्होंने भी हासिल किया अपनी टीम के लिए, जिसमें इकोनॉमी रेट उनका उनसे काफी बेहतर 4.33 का। तो ये एक बुनियादी फर्क आज की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, इन दोनों भाइयों की अगर आप तुलना करें तो कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल साबित हुए हैं सैम करन टॉम करन की बनिस्बत। No doubt about that, but what a magical innings by Lokesh Rahul. What a fantastic and an enjoyable performance as Tom Curran bowls to Rishabh Pant. He goes for that shot outside the off stump, inside out, 1 bounce and Reece Topley is there. Rishabh Pant coming back for the second run. Very good running between the wickets, and by the time the ball came back to Josh Buttler, the second run was taken very, very quickly. End of 45 overs, India 273 runs for the loss of 4 wickets. The new man in is Hardik Pandya. Rishabh Pant batting on 63. जी हाँ, ऋषभ पंत 63 रनों पर है
और चौथे विकेट के लिए एक बढ़िया शतकीय साझेदारी देखने को मिली ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के बीच में, और कहना होगा कि इन दो शतकीय साझेदारियों ने कहीं ना कहीं इस मैच में भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और अब जबकि पारी समाप्त होगी भारत की, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि भारत यहां पर कम से कम 315-325 के बीच का स्कोर कहीं ना कहीं आसानी से हासिल कर सकता है, बशर्ते कि भारत के विकेट सुरक्षित रहे 50 ओवर की समाप्ति तक, क्योंकि क्रिकेट बहुत अनिश्चितताओं का खेल है। और ये हमने पिछले मैच में भी देखा। कौन समझ रहा था उस समय कि जब इंग्लैंड की टीम के 135 रन बन गए थे और उनका कोई विकेट नहीं गिरा कि इंग्लैंड की टीम वो मुकाबला हार जाएगी। सबको लग रहा था कि केक वॉक होने वाला है इंग्लैंड के लिए, आसानी से वो मुकाबला जीत लेगी। लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद ही जिस तरह से उसके बाद विकेटों का तांता लगा, जिस तरह से विकेटों का पतन हुआ, तो मैच भारत के पक्ष में। तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं वो इस आधार पर कि भारत अपने विकेट को सुरक्षित रखे। अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद को पुल कर दिया हार्दिक पांड्या ने, और 6 रनों के चौके के साथ नहीं, 6 रनों के साथ वहां पर अपना खाता खोलते हुए एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि शायद स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ, स्कोर बोर्ड पर 4 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 6 रन, गेंद सीधा हवा में तैरती हुई आसमान को मानो छूने की कोशिश कर रही हो और सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर समाती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर भारत का बढ़ के अब हुआ 279, 4 विकेट के नुकसान पे। आतुरता अब समझ में आई पंकज कि कितने आतुर थे वो बीच मैदान में उतरने के लिए। आते ही पहली गेंद का सामना और पहली गेंद को सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Welcome for Sam Curran. India are in a fantastic position. Hardik Pandya now will try to match Rishabh Pant in the explosiveness quotient, 279 for 4. He has to be careful because the bowler can come back. Sam Curran left arm over the wicket to Hardik Pandya. Yorker, good ball. That's a fantastic reply, and what Hardik Pandya can do is just dig it towards backward square leg. Sam Curran is a very intelligent bowler, no doubt about that, but India are at 280 for the loss of 4 wickets. Pant is batting on 63 of just 35 deliveries, and the way he has been picking up the deliveries, choosing the bowlers and choosing the right spot is really immaculate, as well as the power that he generates with his shots is absolutely fantastic. So he has flourished in these conditions, but we'll have to see what he does to Sam Curran outside the off stump. Slow delivery, he has hammered it over the bowler. Oh, even a miscued stroke from Rishabh Pant goes all the way, oh, long gone. For 6 runs. This is the power of Rishabh Pant. The strong forearms and the biceps come into the picture. He was not really in control of that stroke. Sam Curran had bowled it slightly wide outside the off stump, and he knows he's a bit disappointed. It was a slow delivery, but still Rishabh Pant got under it, and the ball came from the bottom of the bat. What oil does he use for his bat, Ashish? We can use and ask him sometime. But what a shot. Amazing stuff. And the ball went all the way up to 86, 87 meters, and Sam Curran was visibly very disturbed because he knew he had the better of the batsman. But nevertheless, Rishabh Pant and his magical performances so well. This time on the off stump, he has hit it over the bowler. Good fielding in the end by the fielder at long off. Cuts it off quickly gives it to the fielder backing up at long on. Johnny Bairstow it was, and returns the ball back to the field. The bowler, 287 runs for the loss of 4 wickets, a 6 and then a single for Rishabh Pant. This is the 46th over. India would be eager to get more, but what can Hardik Pandya do? He has to be careful because Sam Curran can be a witty customer, and this is a fantastic contest between bat and ball. From the pavilion end, Sam Curran, left arm over the wicket to Hardik Pandya. Full toss, and it's been hit over square leg. Oh, it goes almost about 36th or the 37th row. 6 runs, what a shot. And timing, class apart, Ashish. What a shot. It was just a punch and a flick of, because the ball was bad, no doubt about that. But Hardik Pandya really smacked it. Fantastic timing. शानदार टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक, और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने आते ही अपनी मंशा जतलाई है कि वो रुकने वाले नहीं है। पहली गेंद के साथ ही उन्होंने छक्के का आगाज करते हुए छक्के के साथ पारी की शुरुआत की थी, वो शानदार रहा। 293, 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का आना बाकी है, और हार्दिक पांड्या ने 3 गेंदों में 13 रन बना लिए हैं 2 छक्कों के मदद से। पंत दूसरे छोर पर 70 रन बनाकर खेल रहे हैं 37 गेंदों का सामना करने के बाद, और इस ओवर में खासा महंगा साबित होना पड़ रहा है सैम करन को। 3 छक्के अब तक लगाए जा चुके हैं और 2 गेंदों पर सिंगल्स लिया जा चुका है।
Are they missing Jofra Archer? Because Jofra Archer is a specialist death bowler and his absence is really creating a big problem for England. जी हाँ, न केवल जोफ्रा आर्चर बल्कि मैं कहूंगा कहीं ना कहीं जो रूट को भी वो जरूर मिस कर रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी में एक शीट एंकर की भूमिका वो निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो लीवरेज है या एक ऑप्शन है, विकल्प है, वो इस समय इंग्लैंड की टीम के पास नहीं है। 293 4 विकेट के नुकसान पर इस समय भारत का स्कोर। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है भारत, और जैसे कि हमने कहा कि इस श्रृंखला में ये नवा अवसर था जबकि टॉस इंग्लैंड के पक्ष में रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर मैचों के परिणाम अब तक इस श्रृंखला में भारत के पक्ष में रहे हैं। सैम करन अपने इस ओवर के अंतिम गेंद लेकर इस बार ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, वाइड होगी निश्चित रूप से। वीरेंद्र शर्मा ने कोई कोताही नहीं दिखाई, ये देखते हुए कि ओवर द विकेट आते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑप्शन से काफी ज्यादा दूर कर दी थी ये गेंद, और इसे वाइड देने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं अंपायर वीरेंद्र शर्मा को। वीरेंद्र शर्मा जो कि 49 वर्ष के हैं, तीसरे एक दिवसीय मैच में ऑनफील्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। एक दिवसीय मैचों का जहां तक सवाल है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में जन्मे और इस श्रृंखला में उनका खासा आज प्रदर्शन रहा है, लेकिन आज के जो 2 उनके निर्णय थे ऋषभ पंत के संदर्भ में, वो कहीं ना कहीं डीआरएस में पलटे गए। 294 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर गेंद के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है, जिस पर कोई रन नहीं बना, और स्कोर भारत का 46 ओवर के बाद 294 4 विकेट के नुकसान पर। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA की सलाह, सशक्त, शिक्षित एवं जागरूक निवेशक बने। अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-114-667 पर कॉल करें। Amazing hitting by Rishabh Pant and Hardik Pandya, and as we mentioned, Jofra Archer is being missed here very dearly by England. He was missed in fact, in the last match, also in the last 10 overs, the Indian batsmen were really able to exploit the English bowling, and exactly the same has happened here today in the second ODI. And England will be not happy with the fact, because that puts a lot of pressure on the middle order. They have played well, and even in the last match, they were looking on course, as you mentioned, 135 without the loss of any wicket, and it looked like they would really go ahead, but then the Indian bowlers came back very nicely. Exactly the similar situation here, and now they would be thinking, why did they win the toss and decide to bowl first, wherein they could have basically chosen to bat. But full marks to the Indian middle order, and Ashish, looks like there's some more hitting remaining, because 46 overs have been bowled, and India right now at 294 for 4. How far can they stretch this score is the big question, with both Hardik Pandya and Rishabh Pant in the middle. It's going to be brother Tom Curran to start the new over. टॉम करन की पहली गेंद नए ओवर की, ऑप्शन से काफी ज्यादा बाहर, फुल टॉस पर लेकर आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह की गेंद पर गेंद को खेलेगा बल्लेबाज और 6 रनों के लिए बाहर जाएगी? ये सिर्फ एक दिवसीय या T20 मुकाबलों में ही देखने को मिल सकता है, और ऐसा कमाल ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज ही कर सकते हैं। And that too with one hand off the bat. He just hammered it, clubbed it, and it looks like one-day internationals now are an extension of T20, the way these players are playing. इधर छक्का लगा और इधर आंकड़ों के अथाह समुद्र में गोता लगाकर तुषार त्रिवेदी हमारे स्टैटिस्टिशियन ने एक आंकड़ा निकाला कि ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में 7 छक्के लगा चुके हैं। इससे पहले सबसे ज्यादा इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में एक दिवसीय मैच में छक्का लगाने वाले युवराज थे राजकोट पर 2008 में, जिसमें 6 छक्के लगाए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने कटक में 2017 में भी 6 छक्के लगाए थे। तो दिलचस्प आंकड़ा निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिस्टिशियन और स्कोरर्स की जो पैनी निगाहें आंकड़ों पर रहती है, और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि ये हमारे प्रसारण को तड़का लगा करके आप तक पहुंचाने का काम करता है, और यही इस प्रसारण की खूबी है, यही आकाशवाणी की कमेंट्री की खूबी है। फिलहाल बातों ही बातों में 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है भारतीय पारी, 301 4 विकेट के नुकसान पर। 47वां ओवर इस समय प्रगति पर है। हार्दिक पांड्या 13 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार गेंद को पुल कर दिया, एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, लेकिन अंपायर नहीं, 6 रन वहां पर। मुझे भी एक क्षण के लिए अंपायर की तरह ऐसा ही लगा नितिन मेनन कि संभवतः गेंद एक बाउंस के बाद बाहर निकली है, और जब फील्डर से उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली कि गेंद सीधा सीमा रेखा से बाहर पहुंची है, तब जाकर उन्होंने छक्के का इशारा किया, और इस छक्के के साथ हार्दिक पांड्या का स्कोर पहुंचा 19 पर। 19 रनों में 3 छक्के हैं। पूरी
मंशा बना करके, इरादा बना करके मानो मैदान पर उतरे हों कि आज बल्लेबाजी करनी है तो ताबड़तोड़ करनी है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना है, सामने भले ही कोई भी गेंदबाज हो। और इस समय टॉम करन अपने आप को खासी मुश्किलात में महसूस करते हुए अगली गेंद फुल टॉस पर, लेकिन इस बार ये गेंद यॉर्क कराने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन गेंद फुल टॉस पर लेकर मिड विकेट क्षेत्र में खेल दी 1 रन के लिए। अब तक हार्दिक पांड्या ने जितनी भी गेंदें खेली हैं उसमें कोई भी गेंद ऐसी नहीं है जिस पर उन्होंने रन ना बनाया हो। हालांकि जिस तरह का उनका खेलने का अंदाज रहा है वो निश्चित रूप से अब तक काफी विस्फोटक रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि 3 छक्के अब तक उन्होंने अपनी इस छोटी सी 20 रनों की संक्षिप्त पारी में लगाई है। Explosive is the way Hardik Pandya bats, but a good comeback by Tom Curran in the earlier delivery. 308 for 4 over the wicket. Tom Curran bowls, and this time Rishabh Pant goes for that huge stroke. It's been miscued. It's high up in the air and caught at a deep backward point by Jason Roy. Or has he dropped it? Oh, this is unbelievable. Umpire Nitin Menon is just confirming with him, but the way the expressions of Jason Roy, it looks like he has dropped it. Rishabh Pant is walking off. Nitin Menon asks him to just wait for a moment. Both the umpires now are in discussion. Did we need more drama in this match? Here it is. And umpire Nitin Menon has now, I guess he's asked the third umpire, because when a fielder visibly expresses that he has not caught the ball, both the umpires are also not very sure about it. And Rishabh Pant thought that he was out because he tried to play it way away from the body. The ball got the bottom of the bat. It went in the air, and Jason Roy, in the replays, friends, we are trying to describe the replay to you, that he got the ball, he was sliding and slipping, and it looks like it's out. It looks like after he caught the ball and the hand did bounce on the ground, but looks like there were a couple of fingers under the ball. That's what it's all about. If the fielder has clearly displayed his expressions as he has not caught it, it brings about a lot of discussion. But Jason Roy, after taking the catch, was not very, very sure. Umpire Nitin Menon has asked the third umpire to... Oh, it's out! Unbelievable! Rishabh Pant is out, and the 5th wicket goes down. Rishabh Pant, fantastic, 77 runs of 40 deliveries. He looks like one of the best stocks in the market, giving fantastic returns, and he is out. So now it's the pair of the brothers. Hardik Pandya is right now on strike, gets the ball outside the off stump. He smacks that ball towards long off. He will get just a single, and the brother Krunal Pandya will be on strike. But that's the end of the over number 47, and India 309 for 5. Eventful over from Tom Curran, but Rishabh Pant out. That's not good news. But then Krunal Pandya is back in. Let's see how far the Pandya brothers can take India in the last remaining 18 legal deliveries. 309 रन 5 विकेट के नुकसान पर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन। शुरुआती 2 झटके लगने के बाद आज भारतीय टीम ने बल्लेबाजी से किया है, और इसी तरह का प्रदर्शन भारतीय समर्थक दर्शक चाहेंगे कि भारतीय गेंदबाज भी इस मैदान पर दोहराएं, जिस तरह से पिछले मैच के दौरान उन्होंने पहला विकेट हासिल करने के बाद दोहराया था। हालांकि पहले विकेट के लिए 135 रनों की एक विशाल साझेदारी करने में इंग्लैंड के प्रारंभिक बल्लेबाज कामयाब हुए थे, लेकिन भारत चाहेगा कि आज शुरुआत में ही इंग्लैंड की टीम को झटके दें और दबाव में रखें इंग्लैंड की टीम को। लेकिन ये अगर और मगर से परे हटके फिलहाल जो वास्तविकता है वो ये कि 47 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के 309 रन है 5 विकेट के नुकसान पर। पंड्या बंधु इस समय बीच मैदान पर हैं। हार्दिक पांड्या ने तो आते ही अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मात्र 7 गेंदों में 21 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं, और स्ट्राइक रेट आप कल्पना कीजिए पंकज क्या हो सकता है। स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स की आप चर्चा कर रहे थे कि एक बार में कितना ऊंची बुलंदी वो हासिल कर सकता है। 300%, 300 का स्ट्राइक रेट है इस समय हार्दिक पांड्या का। अद्भुत, अविश्वसनीय। Also, another fact is our statistician Tushar can help us a bit. In fact, is Reece Topley who's bowling. So, first ball slow, and it's gets the thick outside edge. Josh Butler gets the ball in his gloves. It pops out. He tries to recover, but does not. Is not able to do so. Lucky escape there for Hardik. 309 for 105. I was going to ask our statistician to check when Sam Curran and Tom Curran were bowling and Hardik and Krunal were at the crease. Has it happened before?
pair of bowlers, brothers bowling and pair of brothers batting. Ashish. आज जॉस बटलर का दिन निश्चित रूप से नहीं है। 2 कैच आज उन्होंने छोड़े। पहले विराट कोहली को जीवन दान दिया था उनके 35 के स्कोर पर, आदिल रशीद की गेंद पर, जबकि गेंद बल्ले का किनारा लेकर उनके हाथ में टकराई थी और गेंद छूट गई थी। और इस अवसर पर रीस टॉपले की गेंद पर एक अवसर उन्होंने जाया किया हार्दिक पांड्या को आउट करने का। कितना महंगा साबित हो सकता है वक्त बताएगा। फिलहाल अगली गेंद पर गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल के 1 रन हासिल कर लिया हार्दिक पांड्या ने और इस 1 रन के साथ भारत का स्कोर 310। 5 विकेट के नुकसान पर कुरनाल पांड्या अब अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस मैच में पहला अवसर, पहली बार जबकि वो गेंदबाजी के समक्ष होंगे। देखना है कि क्या कुछ कर पाते हैं। पिछले मैच में काफी बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की थी